Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are doing great. Dear students, a warm welcome to all of you on our Genius Academy YouTube and Facebook online digital platform. Dear students, as you know, in previous discussion, we are discussing about work, power and energy. Our chapter is work, power and energy, and today it is lecture number 3 of work, energy and power. As you know, in the previous lectures, in lecture number 1 and 2, what we have discussed about, I will show you the important terms which we have discussed in the last lecture. That is basically work done by a constant force, in which we design the formula, we make the formula of work, that is Fs cos of theta. And after that, we discussed about nature of work, and nature of work, that is our positive work, negative work, and one more important nature of work, that is zero work, which we are going to discuss today. That is very important, and only we discuss it positive work, we discuss it negative work. What are the different conditions in which we can say the work will be positive and work will be negative? We have discussed it. And after that, we discuss some important problems, questions on constant force. And today, we will discuss about what is meant by zero work. So have a look, what is meant by zero work? So we will discuss about zero work. So the topic is our zero work, and zero work, what is meant by zero work? Let me remind you, in the previous discussion, we have discussed about when a force is applied on a body of mass m, when a force is applied on a body of mass m, and if we apply the force in this direction, after that, and the displacement s takes place, after that, if displacement s takes place, and what is the magnitude of work? So in this situation, how we can find out the magnitude? And that is basically, we will go for the component if it will make an angle theta. So this component of force is F cos theta, and this component of force is F sin theta. As you know, this is very important, that we can find out the components of force, that is F sin theta and F cos of theta. So how we can find out the work done? We will take the displacement in the direction of the force applied, and here the work done is W is equal, that will be Fs cos of theta. And cos of theta, theta is the angle between the force and displacement. Now, if we discuss the same situation like this, if we move a mass m body m, and the force is in this direction, if the force is in this direction F, and the displacement takes place in this direction. Now, how can we calculate this? We will take the two components of this force. One, if the angle is with the perpendicular component, then it will be F cos theta in this direction, and F sin theta will be in this direction. And here, how can we write the formula of work done? How can we write the formula of work done? That is basically W is equal, that will be force that is along the direction of the displacement, that is F sin of theta into S, F sin of theta into S. तो ये बनेगा W is equal to F S sin theta. Most of the time that students remember only Fs cos of theta, but in some situation, if the examiner creates a situation like this, if the theta is with the perpendicular vertical, if the theta makes the angle with the vertical component, then we can write Fs sin of theta also. So W is equal to Fs sin of theta. But remember, in work done, this perpendicular component does not do any work. In this case, the perpendicular component does not do any work. That means the perpendicular component
In both the situations, perpendicular component does not do any work. तो हमेशा हम याद रखेंगे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई काम नहीं करता। ये थोड़ा सा मैंने आपको रिमाइंडर दिया, हो सकता है कभी आपको मिले तो हम इसके साथ डील कैसे करेंगे। तो हम अब आएंगे जीरो वर्क पर। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास कोई मास m की बॉडी है लाइक दिस, और इस मास m पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन दिस डायरेक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स हमें यहां पर लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, ये हमारे पास फोर्स है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो जीरो वर्क में आपको बताऊं, अगर आपको याद होगा पॉजिटिव वर्क में मैंने आपको बताया था कि जब एंगल जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90, एंड उसी को हम जियोमेट्री में एक्यूट एंगल बोलते हैं। वहां पर हमारा वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा, और जब जीरो होगा तो हमारा मैक्सिमम वर्क आएगा। इन जीरो वर्क, if we apply the force and displacement does not take place, I am applying the force in this board. If I am going to apply the force but the board does not move, that means what happened? There is zero work because no displacement. Whenever force is zero, force nahi hoga, displacement nahi hoga, in this situation we can say that there is zero work. Now, one more situation is that when displacement and force are at perpendicular to each other, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा। दैट मीन्स यहां पर मैं लिखूं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है वो मैंने यहां पर आपको बताया, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ये हमारी जनरल फार्मूला है। तो अगर 90 डिग्री पर होगा तो हम क्या करेंगे, और यू नो कॉस ऑफ 90 क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ 90 हमारे पास जीरो है। तो हमारे पास जो फार्मूला है, वो फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू दैट इज एफ एस कॉस ऑफ जीरो। दैट मीन्स दिस इज जीरो, तो W वर्क बाय परपेंडिकुलर फोर्स, दिस इज वर्क डन इज जीरो। ये हमारे पास वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो फोर्स जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पर होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो वर्क डन हो जाएगा। याद रखिए, अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर एंगल हमारे पास जीरो होगा, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन बाय वर्क इन दिस सिचुएशन हम क्या बोलेंगे, वर्क हमारा जीरो होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो कभी कभार आपकी बुक्स पे लिखा होता है वर्क डन बाय कुली इज जीरो। जब हम किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जब वो ऊपर उठाते हैं वो बोरा, जैसे मैं यहां पर आपको दिखाऊं, ये जो कुली भाई साहब होते हैं हमारे, एक कुली भाई साहब होते हैं, वो यहां पर ऐसे ये जो सामान होता है किसी का वो ऐसे उठाते हैं, और फिजिक्स के हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। ये देखिए, तो वर्क डन अगर ऐसे वो चलता है, ऐसे चलता है, तो हम बोलते हैं वर्क डन बाय कुली इज जीरो। लेकिन वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। फिलहाल इस पर हम खूब चर्चा करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हम ये याद रखेंगे कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो हमारे पास क्या होता है, जीरो वर्क डन। अब इसी को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, और एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज मैं एक सिचुएशन बनाता हूं, आप देख लीजिए। ये हमारे पास कोई है, हमारा एक दोस्त है, ठीक है। इस दोस्त ने यहां से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, ये इसने डिस्प्लेसमेंट किया, ये डिस्प्लेसमेंट S है, और ये यहां पर पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट S है। अब इस पर अगर फोर्सेस की बात की जाए तो यहां पर हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन।
या फाइंड आउट द वर्क डन बाय ग्रेविटी। अगर हम यहां पर क्वेश्चन बनाएं, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी। ठीक है, अगर ग्रेविटी देखा जाए तो यहां नीचे क्या लगेगा, यस दिस इज जी, दैट इज योर mg। ठीक है, तो फोर्स यहां पर mg होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ये यहां पर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ऐसे, तो मेरे ख्याल से सिचुएशन जो है वो सिचुएशन लाइक दिस है, डिस्प्लेसमेंट ये ग्रेविटी है, तो दोनों के बीच में एंगल है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है, ये हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स कभी वर्क नहीं करता, परपेंडिकुलर फोर्स कभी वर्क नहीं करता। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये इन दोनों के दरमियान ये वाला हमारे पास एंगल है, तो हम यहां पर नोट करेंगे कि परपेंडिकुलर फोर्स कभी वर्क नहीं करता, कभी वर्क नहीं करता। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स कभी नहीं वर्क करता। ये देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास एक सिचुएशन है, ये यहां से यहां जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये हमारे पास है वर्टिकल एक्सिस, राइट। तो या तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस वाली डायरेक्शन में होना चाहिए, इस वाली डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस वाली डायरेक्शन में होना चाहिए। हो सकता है डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द फोर्स हो और दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, वो मैं नहीं बोलता, मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, जब भी फोर्स इस वाली डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट अगर इस वाली डायरेक्शन में होगा, जब हमारे पास फोर्स इस वाली डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट इस वाली डायरेक्शन में होगा, तो यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो वर्क 0 है। या फोर्स इस वाली डायरेक्शन में होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी यहां ऐसे होना चाहिए, यानी अगर हम बोलेंगे तो फोर्स भी एक्स एक्सिस में ही होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस में ही होना चाहिए। बाय चांस अगर इनका ऐसा हो गया, यानी इन्होंने 90 डिग्री का एंगल बनाया डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ने, तो वर्क डन इज 0। चाहे फोर्स इस वाली डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट इस वाली डायरेक्शन में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस वर्क डन आ जाएगा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव वर्क आ जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री खड़ा हो गया, फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट ये, फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट ये, तब कोई भी वर्क डन नहीं होता। तो इन दिस केस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0। तो यहां पर मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0, 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 क्योंकि ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अब देखिए अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर हम यहां इसी सिचुएशन को दूसरे हिसाब से देखें और एक एग्जांपल के साथ, वर्क डन बाय टेंशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, ध्यान से सुनिए, वर्क डन बाय टेंशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वंस अगेन, व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन? डू यू नो दैट टेंशन इज अ फोर्स? यस माय डियर, टेंशन इज अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स, जो कहां पर लगता है, स्ट्रिंग में लगता है। आपको याद है व्हर्लिंग ऑफ स्टोन, जब हम ऐसे करते हैं, बचपन में करते थे, ठीक है, तो वो गोल गोल घूमती थी, ठीक है, तो उस टाइम टेंशन जो आ जाता है, उसमें टेंशन कितना वर्क करता है वो हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास कोई रस्सी है, ये हमारे पास रस्सी है और ऐसे एक सर्कुलर मोशन होता है, ये व्हर्लिंग ऑफ स्टोन। तो ये हमारे पास जो है टेंशन है, इसमें इस रस्सी में क्या आ जाता है, टेंशन आ जाता है। और टेंशन जब आ जाता है, हमें यही बताना है वर्क डन बाय टेंशन,
वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, एग्जाम्पल याद रखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और ये जो आपस में ये वेलोसिटी है, तो ये आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। याद रखिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी और टेंशन के बीच में जो टेंशन आ जाता है, टेंशन एक फोर्स है, तो इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर ये भी एग्जांपल है, वर्क डन बाय टेंशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0। तो 0 कब होगा, जब हमारे पास इनके दरमियान जो है, जो थीटा होता है वो 90 होता है। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल फोर्स लगता है वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, वो बात नहीं है। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0। ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको भी आप याद रखिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये याद रखिए। बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिजिक्स एक प्रैक्टिस का गेम है। तो बहुत सारे बच्चे जो मैं देख रहा हूं, तो मैं बार बार पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूं, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम उन पेरेंट्स को मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों पर ध्यान रखिए। आप जिंदगी के कश्मोकश में ऐसे फंसे हो कि आपको अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं है, आप इतने मस्त हो गए हैं, आपको पता है आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपके बच्चे हैं। अपने बच्चों पर नजर रखो खुदा के वास्ते, क्योंकि आजकल ऐसे भी प्लेटफॉर्म आए हैं जो बोल रहे हैं सेकंड क्लास के भी बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाओ, थर्ड क्लास के बच्चों को हम ये सिखाएंगे, हम वो सिखाएंगे। अरे क्या सिखाओगे, हमारी जनरेशन मोबाइल की वजह से खत्म हो रही है। पता नहीं इनको आप किस दिशा में ले रहे हो। क्या आप पैसों के लिए बच्चों को बोल रहे हो आप ऑनलाइन जाओ? आपको पता ही नहीं है हमारे बच्चे ऑनलाइन में कहां से कहां जाते हैं, ऑनलाइन में कौन सी लाइन पकड़ते हैं। अल्लाह के वास्ते, ये मैं देख रहा हूं, मेरे पास 300-350 बच्चे हैं, मैं देख रहा हूं कितने बच्चे मोबाइल की वजह से कितने डिस्टर्ब हैं, और वो मोबाइल की वजह से कहां कहां पहुंचे हैं। तो तमाम उन पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूं कि आपको इतनी भी फुर्सत नहीं है कि आपके बच्चे कहां पर पढ़ रहे हैं, क्या आपके बच्चे दिन भर क्या कर रहे होते हैं, क्या अल्लाह के वास्ते आपको अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। खुदा के वास्ते अपने बच्चों पर नजर रखिए, यही आपकी प्रॉपर्टी। आप कितनी भी दौलत कमाओ, कितना भी आलीशान मकान बनाओ, लेकिन अगर आपके बच्चे एडजस्ट नहीं हैं, अगर आपके बच्चों में वो तमीज नहीं है, तो आपकी दौलत किस काम की है। पहले उन पर नजर रखिए, उनको एक अच्छे इंसान बनने की तरबियत दीजिए, इनको देखिए कि ये दिन भर क्या कर रहे हैं, कहां पर इनका एडमिशन है, क्या इनका रिजल्ट है, क्या इनकी परफॉर्मेंस है। अल्लाह के वास्ते इन पर नजर रखो, और जहां पर एडमिट हैं वहां के उस्तादों से, वहां के टीचर्स से अल्लाह के वास्ते राबिते में रहिए, इनकी परफॉर्मेंस जानिए, इनको हफ्ते में 15 दिन में एक बार देखने जरूर आइए। आपको इतनी भी पता नहीं है कि हमारे बच्चे कहां पर एडमिट हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, आपने अपने बच्चों के हाथ में फीस दिया है ये इंस्टीट्यूशन में भरने के लिए जहां पर आप पढ़ाई करते हो, और उन बच्चों ने वो फीस भी नहीं भरा है, पता नहीं उन्होंने कहां पर वो लगाए हैं। क्या आपको इतनी भी पता नहीं है? क्या आपने एक बार भी ये मुनासिब ना समझा कि हम उन पेरेंट उन टीचर जो इसको पढ़ाते हैं उनको कॉल करें? 350 बच्चे मेरे पास एनरोल हैं, और आज तक 5 या 6 पेरेंट्स मेरे राबते में हैं। अब आप बताइए अल्लाह के वास्ते आप कहाँ हो? आपकी आपकी जो फोकस होना चाहिए वो आपके बच्चों पर होना चाहिए, इनके करियर पर होना चाहिए। आप तो दूसरे कामों में इतने मशगूल हो, असली जो आपका काम है, जो बच्चे आपसे तरबियत चाहते हैं, ये कल के डेट में आप पर ही उंगली खड़ा कर देंगे।
कि आपने हमारा ध्यान क्यों नहीं रखा, हम तो उस एडोलेसेंट पीरियड में थे, हमारी तो एज ही वैसी थी, हम तो कोई भी रास्ते, किसी भी रास्ते पर भटक सकते थे, लेकिन आप कहां पर थे, पेरेंट्स आप कहां पर थे, आपने अपने बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखा। तो अल्लाह के वास्ते, अगर जो भी पेरेंट मुझे सुन रहा है, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दे दो। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, मैंने बोला था जो दो एग्जांपल्स हैं, वर्क डन बाय टेंशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पर भी जीरो वर्क होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन पर आते हैं। जैसे मैंने अभी ग्रेविटी का केस बताया, अब मैं आपको नॉर्मल रिएक्शन का केस बताता हूं। नॉर्मल रिएक्शन का जो मेरे पास केस है, सिंपल वही चीज है। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक ऐसे है, इस ब्लॉक का मास m है, और इस ब्लॉक का यहां से यहां हमने मूव करा दिया, ये यहां से यहां हमने मूव करा दिया, मास m, और यहां से यहां इसका जो माय डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट s है, और हमें बता दिया गया है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर क्वेश्चन ये है, फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड work done by normal reaction, work done, find work done by normal reaction, by normal reaction, normal reaction। चलिए, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा भी जाएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इस वाली डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन आपको याद है कहां पर लगता है, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगता है, कांटेक्ट सरफेस। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट यहां की ओर है, और नॉर्मल रिएक्शन हमारा ये है। तो ये यहां पर दोनों कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन, मैंने बोला पहले ही परपेंडिकुलर वाला फोर्स कभी काम नहीं करता। तो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट सरफेस के, जहां पर कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। और याद रखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो हमारे पास वेट जो लगता है, वेट mg, वो लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन 90 डिग्री है, तो यहां पर थीटा कितना आ गया, थीटा हमारा आ गया 90 डिग्री, और हमें पता है cos 90 जो है, cos 90 0 है, तो हमारे पास वर्क डन जो होगा fs cos, ये हमारे पास आ जाएगा fs cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास fs cos ऑफ 90। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या मिला, 0 मिला। ये हमारे पास वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो मैंने बार बार बोलता है कि परपेंडिकुलर, हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी काम नहीं करता है, परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी काम नहीं करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये हमने HC वर्मा पर है, HC वर्मा पर ये क्वेश्चन है, HC वर्मा पर ये क्वेश्चन है, HC वर्मा पर ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है ये एक इस तरह का, हमारे पास एक ये एक ऐसा हमारे पास, ये हमारे पास ऐसा है, ये इस तरह की सिचुएशन है हमारे पास, ठीक है। और यहां पर एक मैन, यहां पर एक बंदा हमारे पास ये खड़ा है ऐसे, और ये यहां से यहां इधर आ जाता है, और ये ऐसे यहां पर पहुंच जाता है, डिस्प्लेसमेंट s हो जाता है। अब यहां पर भी हमें पूछा गया है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो बंदा है इसका नीचे क्या लगेगा, हमारा mg, सॉरी mg, हाँ mg लगेगा हमारा सेंटर से, ये mg। और आप मुझे बताइए नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, सरफेस के कांटेक्ट में जो दो सरफेसेस को, उनका नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर, यानी इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा। ये हो गई हमारी नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो यहां पर थीटा हमारे पास क्या है,
थीटा है हमारे पास 90 डिग्री। देखिए कितना आसान सवाल कर दिया हमने। अगर एससी वर्मा पर देख दीजिए, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट तगड़ा नहीं होगा तो बड़ी परेशानी होगी। तो थीटा 90 डिग्री, तो हमारा वर्क डन जो है वो होगा एफ एस कॉस ऑफ 90। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर यही चीज मैं ऐसे समझाऊं आपको, यही चीज अगर मैं ऐसे समझाऊं, यहां पर मैं आता हूं, अगर मैं यही चीज आपको ऐसे समझाऊं कि ये वाला बंदा जो है, ये वाला बंदा जो है, अगर यहां पर ये वाला बंदा ऐसे होगा और ये ऐसे चल रहा होगा इस पर, तो यहां पर मुझे बताइए क्या वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा? नो, क्योंकि यहां पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है नॉर्मल रिएक्शन, और ये यहां पर वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन नॉट इक्वल टू 0। और यहां पर देखेंगे हाइट कितनी होगी, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे वर्क डन कहां होता है। तो ये यहां पर परपेंडिकुलर नहीं बनाता, यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन पर है। मैंने बोला फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन पर होनी चाहिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन पर होने चाहिए। तो यहां पर ये हमारे पास जो यहां वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो मेरे ख्याल से अब आपको 0 वर्क डन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। आपको ये खुद आपसे ये वाले क्वेश्चंस आपसे खुद बनने चाहिए। A 2 kg of mass lying on a table is displaced in the horizontal direction through 50 centimeter। चलिए बढ़िया बात है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है A 2 kg, ये 2 kg है, तो यहां पर जो हमारे पास मास है वो 2 kg है। ये हमारे पास मास है 2 kg, ठीक है। ये जो है टेबल इज डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू 50 सेंटीमीटर। इसको हमने यहां से यहां लाया और यहां एस जो है वो 50 सेंटीमीटर है, 2 kg का ब्लॉक। हाँ बिल्कुल, द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, सेम जो चीज मैंने आपको अभी समझाई है, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट है और नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा, ये और डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये होगा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0। कैसे, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 90, ठीक है। तो cos 90 0 है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0। अगर आपको कोई ऑप्शन है तो वो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। देखा, बहुत आसान क्वेश्चन। There is an elastic ball and a rigid ball. There is an elastic ball and a rigid ball. ठीक है, there is an elastic ball and a rigid ball। चलिए पहले हम देखते हैं rigid ball। ये हमारे पास एक rigid ball है और यहां से हमारे पास एक इलास्टिक बॉल है। ये हमारे पास इलास्टिक बॉल है। हाँ, rigid ball is thrown towards the ball। ओके, हमने थ्रो कर दिया बॉल को, वेरी गुड। तो यहां पर ये जब वॉल के साथ टकराएगी ये बॉल, इलास्टिक बॉल है और हमारे पास ये जो वॉल है ये हमारे पास रिजिड वॉल है, ठीक है। ये बॉल आगे टकराई, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन इज, वेरी गुड। तो नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क किया, ये फोर्स जो है इस वाली डायरेक्शन में लगेगा। और मैंने बोला था कि यहां पर जहां पर ये लगेगा वहां पर जब सरफेस इन कांटेक्ट है तो वहां पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन लगता है। नॉर्मल रिएक्शन, तो वर्क की एग्जांपल क्या है, वर्क की एग्जांपल क्या है, वर्क की एग्जांपल है या तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, हमारा जहां पर फोर्स लगता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहां पर अगर बात की जाए एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये जो रिजिड वॉल है यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, रिजिड वॉल है, और यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कोई वर्क डन नहीं करता। तो यहां पर जो आंसर आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट मूव, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज 0। यहां पर लिखूंगा मैं एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, as the point of application does not move, as the point of application, as the point of application, as the point of application of force,
as the point of application of force does not move. Does not move. As the point of application of force does not move, work done by the normal reaction is zero. Work done by normal reaction is zero. यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो. हाँ जी बच्चा, कैसा लगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से. डायरेक्ट पूछा कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप जल्दबाजी में आंसर गलत भी कर सकते हो. आप जल्दबाजी में आंसर गलत भी कर सकते हो. तो नेक्स्ट जो है, चलिए, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये मैंने शायद आपको पहले क्लास के पहला जो लेक्चर है उसमें भी आपको बताया था मैंने ये वाली बात. ये जो कोई बंदा है ये रन कर रहा है, रन करते करते ये यहां पहुंच गया, तो हमें बताना है, अब यहां पर बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन. ये यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक यानी ये जब यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तभी तो ये आगे चल रहा है. अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था ये चिपक चिपक के चल रहा है, चिपक चिपक. मैंने लास्ट टाइम बताया था ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ये जो चलेगा, मूव करेगा, ये मूव कैसे करेगा? यहां पर एक पैर दबाया, फिर ये दूसरा पैर दबाया. ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है इस जगह पर. क्या यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? अब देखिए, अब ये वाला उठेगा, आगे यहां पर जाएगा, फिर ये वाला उठेगा, आगे यहां पर जाएगा, फिर से ये यहां पर फोर्स लगाया हमने, यहां डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है यहां पर, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. तो स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जब यहां पर ये वाली चीज आ जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कोई वर्क नहीं करता. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कोई वर्क नहीं था. देयर इज ये जो है हमारे पास, एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट move, work done by frictional, work done by friction in normal, work done by friction is zero. Work done by friction is zero. As the point of application of force does not move. मैंने बार बार बोला है, ये जो हमारे पास as the point of application of force does not move, ये static friction के केस में work done zero होता है. Static friction, static friction का वर्क डन स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो इज इक्वल टू जीरो. स्टैटिक फ्रिक्शन का जो हमारे पास वर्क डन होता है वो हमारे पास क्या होता है? जीरो होता है. तो बार बार मैं बोल रहा हूं, जो हमारे पास हमेशा याद रखिए, वर्क डन बाय ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो कोई वर्क नहीं करता है. एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट मूव, एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट मूव, एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, application of force, as the point of application of force does not move, does not move. जहां पर फोर्स लगता है वो मूव नहीं होता है. ये देखिए, यहां पर फोर्स लगता है, मूव नहीं हुआ, तो ये अगर ऐसे होता तब मूव होता, ऐसे. वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन का मैं नहीं बोल रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन का बोल रहा हूं. ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये वाला पैर, फिर ऐसे ये वाला पैर, फिर ऐसे ये वाला पैर. तो यहां पर वर्क डन जो होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट मूव, तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहां पर भी वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग. ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, खुद तो ये वर्क कर रहा है, लेकिन हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा है उस टाइम जीरो हमारे पास है. और एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, जब कोई भी पर्सन सीढ़ियों को चढ़ता है, सीढ़ियों को चढ़ने का मतलब क्या है? ये देख लीजिए, ये ऐसे कोई सीढ़ी है हमारे पास, ये ऐसे, और कोई बंदा जो है वो इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है. ये कोई बंदा है ऐसे,
ये ऐसे करके इन सीढ़ियों पर चढ़ता है, फिर यहां पहुंच जाता है, फिर यहां पहुंच जाता है, फिर ये यहां पहुंच जाता है। अब देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये ऐसे, फिर दूसरा कदम यहां पर रखता है, फिर यहां पर रखता है, फिर ऐसे ये सीढ़ियों को चढ़ता है। अब बताइए यहां पर जो फोर्स लगता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या वो कोई वर्क करता है? क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कोई वर्क करता है? जहां पर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहां पर है, अब देखिए ये पैर उठाता है, फिर यहां पर रखता है, फिर पैर उठाता है यहां पर, फिर यहां पर रखता है, और इस दिस केस में भी कोई वर्क डन नहीं होता क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कोई वर्क नहीं करता। एज वर्क डन बाय, इसमें हमारे पास जो है एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट मूव, या मैं दूसरे लफ्जों में बोल सकता हूं वर्क डन बाय द, अगर यहां पर बोला जाए वर्क डन तो स्टैटिक पे। और दूसरी बात, नॉर्मल रिएक्शन क्या कोई वर्क करता है इसमें? नॉर्मल रिएक्शन क्या कोई वर्क करता है इसमें? अब नॉर्मल रिएक्शन कहां होता है इसका? ये तो ये यहां पर है नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो है, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन पर्सन क्लाइंब्स अप द स्टेयर्स इज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, work done by normal reaction when a person climbs up the stairs is equal to 0। ठीक है, जब स्टेयर्स अप करेगा तो 0 होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यहां पर ऐसे ये जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कोई भी चीज मूव नहीं होती जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है। तो ये इसके बाद में ये चीजें मैंने आपको 0 वर्क में समझाया, मेरे ख्याल से बहुत इजी चीजें हैं 0 वर्क में। और अब लास्ट में एक होम वर्क में आपको देता हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने ये नहीं बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन, मैंने बोला फ्रिक्शनल फोर्स। क्या फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा वर्क करता है? क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव वर्क करता है? क्या वो ऑलवेज नेगेटिव वर्क करता है? या वो खाली 0 वर्क करता है? मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और 0। ये आपका होम असाइनमेंट है, इसका आंसर मुझे आप जरूर देंगे। और अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसी को डिस्कस करके हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे। और आज जो हमारे पास थैंक यू, बी ब्लेस्ड ऑलवेज एंड फॉरएवर, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है, आगे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।